हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर मेट्स। लास्ट सेशन में हमने साइंस स्ट्रीम के बारे में डिस्कशन किया था। आफ्टर क्लास 10th वी हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स इन आवर माइंड्स। साइंस स्ट्रीम में हमने इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। द फर्स्ट कैटेगरी वाज रिलेटेड टू मेडिकल स्ट्रीम, दैट इज PCB स्ट्रीम, एंड वी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट. Now today we are going to discuss science stream, which is non-medical, that is engineering stream, and all of us know that is PCM stream. Now when we talk about PCM, then definitely it is related to those students who want to make their career in the field of engineering, because when it comes to PCM, most of the students are willing to work as engineers, or they want to do BTech. And yes, of course there are many other study courses of study as well. So today we are going to discuss the same. Let us have a deep insight into the same. So dear students, all of us know that when we talk about science stream, that is PCM stream, then there are main subjects like physics, chemistry, mathematics and English. So instead of biology, we have mathematics here. And apart from that, we have some optional or elective subjects. स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर स्कूल में 4-5 सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। इनमें से एक कंप्यूटर साइंस है, देन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में भी अनदर सब्जेक्ट, हिंदी, देन लीगल स्टडीज़, होम साइंस, and apart from that you can see that business studies, economics. So there are various other subjects, elective subjects, which are being offered by the schools. Now students generally take elective subject or opt elective subject on the basis of two criteria. The first criteria may be the difficulty level or the easiness of that particular subject. If they think that they should opt any easy subject, that is fine, but trust me, this should not be the only criteria. And the second criteria which is being preferred by most of the students is not only the difficulty level of the subject, but also whether the subject is scoring or not. If the subject is highly scoring, so they prefer that. So these two criteria are the criteria which are the preferred ones, but I would recommend that try to select that elective subject which complements your career idea. आपका कोई स्पेसिफिक करियर प्लान है, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कन्फ्यूजन जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे हम लोग उनको एनालाइज कर पाते हैं। जैसे सपोज़ आपका स्ट्रीम क्लियर है बट करियर में क्लैरिटी नहीं है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगर आप अपने आप को स्टार के कैटेगरी में देख पा रहे हैं, यानी आपका स्ट्रीम भी क्लियर है और करियर आइडिया भी क्लियर है, देन आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और आप अपने करियर पाथवे को बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाते हो या गोल को अचीव कर पाते हो। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि PCB के केस में, PCB स्ट्रीम के केस में अगर हम साइकोलॉजी लेते हैं तो इसकी यूज़फुलनेस काफ़ी है, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, करियर एवेन्यूज़ बहुत ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करें या साइंस स्ट्रीम में PCM स्ट्रीम की बात करें, यहाँ पर भी साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू दैट the subject combination may be discussed at a later level. So as I said that today we are going to emphasize upon science stream, which is PCM stream. So let us focus upon that only. Now dear students, when we talk about engineering, so in India it is a 4-year degree program, undergraduate degree program. Now the minimum eligibility criteria here is minimum 50% in PCM, but of course scores do matter. अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। And then you have to go with entrance examination. So JEE prelims and mains के अलावा आप CUET के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एंड Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए JEE स्कोर यूज़फुल हो सकता है। एंड देन देर आर वेरियस अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. So for entrance examination we can discuss it later, but yes of course BTech अगर आप कर पाते हो तो उसके बाद एक MTech कोर्स हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो सकता है, you can go for that. बट अगर आपके में साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, आपके में इवन टेक्निकल एबिलिटी है, यानी अगर हम 4-5 स्किल्स की बात करें तो एक है बेटर न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होनी इंपॉर्टेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच,
And apart from that, teamwork, skill of persuasion, leadership skill. So there are certain skills, communication skills even. So these skills are to be there when you are going for engineering, you are going to opt engineering as a career. So dear students, when it comes to the specialization in engineering, there may be different specializations. For example, the most common specializations available with most of the colleges may be computer science and engineering, information technology. There may be a little difference between computer science and information technology, but trust me, if you are skilled enough, then branch doesn't matter. Why? Because if you are skilled, then you know your career pathway. If you are skilled, then that means that you have already decided that which specialization you should go for, and on the basis of that you have already done a lot of research of the companies. So companies के पास बहुत सारे projects होते हैं, projects की requirements होती हैं. If you have a better understanding of that industrial requirement, then you can prepare yourself in a better way. स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस, आईटी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत कॉमन है, एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इवन केमिकल इंजीनियरिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं. उसके अलावा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी काफ़ी पॉपुलर हैं. अगर हम डिमांड की बात करें तो वो फ्लक्चुएट करती है. यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज़ हाईली इन डिमांड. कंप्यूटर साइंस आईटी के अलावा अगर हम कोर सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट, आपका इंक्लाइनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट डजंट मीन दैट यू शुड फॉलो द ट्रेंड, इट डजंट मीन दैट यू शुड go where there is high demand of the branch or the specialization, because if it doesn't meet your interest, if it doesn't meet your skill, if it doesn't meet your aspiration, then definitely it won't work. आप अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन के साथ बहुत अच्छा आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी स्किल्स और एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, देन उसका उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाने का कोई पर्पज़ नहीं प्रूव हो पाता है. इसके अलावा बहुत सारे अलग स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल. अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशंस 100 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं जो कि मॉडर्न भी हैं, लेटेस्ट भी हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट. सो इस तरह के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं. लिस्ट कैन बी एग्जॉस्टिव, लिस्ट कैन बी मेड अवेलेबल टू यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू वांट. करियर एक्सप्लोरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑल्टरनेटिव करियर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या एक्चुअरियल साइंस या इवन हम अगर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर पाथवे है या ऐसा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आप बहुत सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ऑलरेडी होते हो. वन क्वेश्चन इज़, क्या हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ले सकते हैं? यस. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें या तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जाएं या नॉन मेडिकल प्रोफेशन के साथ जाएं, तो वो पीसीएम भी दोनों लेते हैं, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों टेस्ट करते हैं, दोनों लेते हैं. या दूसरा हो सकता है कि वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या उनका बहुत पैशन है, यानी बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो वो पीसीएम भी कॉम्बिनेशन लेते हैं. But I have personally observed that this combination is being taken by very few not good number of students, but very few students. And those students who are actually desirous to explore more, and those who want to open up their career avenues in both the areas like medical and non-medical professional areas, and also they are hard working. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके में वो कैलिबर नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है जिसमें आप दोनों तरह के करियर एवेन्यूज़ को ओपन कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें, चूँकि हम लोगों ने साइंस स्ट्रीम की बात की थी, तो साइंस स्ट्रीम में हमने फर्स्ट सेशन में, इसके पहले वाले सेशन में पीसीबी यानी मेडिकल स्ट्रीम की बात की थी, और ये नॉन मेडिकल स्ट्रीम है. अब इन दोनों स्ट्रीम को देखें तो ये आता है अप्लाइड साइंसेज में, और अगर हम नेचुरल साइंसेज में, यानी कि हम साइंस स्ट्रीम को हम 2 कैटेगरीज़ में, ब्रॉड कैटेगरीज़ में भी कैटेगराइज कर सकते हैं. एक है अप्लाइड साइंसेस, जिसमें हम लोगों ने मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम यानी पीसीएम और पीसीबी के बारे में बात किया. बट एक दूसरा होता है नेचुरल साइंस, जिसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड कोर्सेज, यानी जिसमें लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज भी आता है या फिजिकल साइंसेज भी आता है. तो इसको हम यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा कोर्स हो सकता है, वो है बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी कोर्स.
So here I would like to give you an insight of BSc course. So BSc is also one of the most popular undergraduate courses in India, जिनमें साइंस की एबिलिटी होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, जो साइंटिफिक एनालिसिस करके यानी अप्लाइड पार्ट को देखते हुए, एप्लीकेशन को देखते हुए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, इवन रिसर्च एरिया में जाते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो BSc कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उसके अलावा अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो 3 इयर्स BSc प्रोग्राम हो सकता है या 4 इयर्स BSc ऑनर्स हो सकता है। और इसमें स्पेशलाइजेशन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम टेस्ट की बात करें या कॉम्पीट करने की बात करें तो आपका क्लास 12th का स्कोर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेरिट भी देखी जाती है ना। अगर हम स्पेशलाइजेशन को देखें तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। अभी ये स्पेशलाइजेशन के एरिया को चूज़ करने में भी आपको अपना इंटरेस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने इंटरेस्ट को भी देखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी देखें, उसके अलावा फैसिलिटी और रिसोर्सेज की भी बात करें, अपने आसपास की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके थ्रू आप देख सकते हैं कि किन एरियाज़ में हम रिसर्च कर सकते हैं या किन प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग को कंसिडर करें तो एग्रीकल्चरल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एनवायरमेंटल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें आप अपने टेक्निकल और साइंटिफिक एबिलिटी दोनों को इम्प्लीमेंट या एडमिनिस्टर कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन योर एक्सप्लोरेशन। सो BSc में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो BSc प्योर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी कर सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी में भी कर सकते हो, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिसिंग एरिया हो सकते हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी बीन सेइंग कंटिन्यूसली दैट इफ़ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं उनका अगर कोई पर्टिकुलर डाउट हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंडिविजुअली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। सो थैंक यू सो मच। टुडे वी हैव completed the science stream and later on we'll be discussing the commerce stream, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं स्ट्रीम्स की, कन्फ्यूजन जब होते हैं तो या तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में हो सकता है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में हो सकता है या साइंस स्ट्रीम में। साइंस स्ट्रीम वी हैव ऑलरेडी completed and I hope it has made you clear with the concepts, and also you are better able to decide for yourself and then wait for the next video which will be related to commerce stream. Thank you.